इतना सा फर्क है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन की कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. Good afternoon, one and all. Franchise India is the first company to introduce and develop franchise market in India. We completely focus on franchising ecosystem. We have served 4,000 brands and more than 40,000 investors in getting their brands from us. We truly believe in partnership between brands and investor. Through our dynamic media and service platform, we have catered to investors across all industry and categories like F&B, education, retail, fashion, health, etc. We welcome you to 151st episode of Business Opportunity with Chai webinar series, an initiative which we have taken 7 months back to provide and represent brand for the day. We do not endorse any particular brand. We welcome management team of Franchise India and our panel member, Mr. Gaurav Maria, along with our second panel member, Ms. Sonia Chaudhary. During the course of the webinar, we'll start with a complete and correct understanding about the brand, moving towards the question and answer session, and then the final closures from our panel member. Today, we are presenting brand from retail segment. We have brand Lofa, brand which comes from Bombay, established in 2019, and currently they are running their 7 outlets in different cities, cities like Ahmedabad, Nagpur, Indore, Raipur, Jabalpur, Mumbai, and Pune. It's India's fastest growing designer lifestyle brand. They are known for their wide variety of lifestyle product. The team at Lofa tracks consumer preference, shopping behavior, and brand experience. They are known for their high quality products, large range of SKUs, and credibility in market. Thank you so much, Jitender and Priyanka, for joining us today. Jitender Navani is the founder of the brand, and Miss Priyanka Navani is the co-founder. Thank you so much, both of you, for joining us today. हम आपका स्वागत करते हैं. Over to you to explain your brand to each one of us. Priyanka, you need to unmute. Thank you so much, Archana, for the introduction. Yes. Now I'll start with about Lofa. Lofa has a wide variety of lifestyles product. Like you can see from the images onwards, like we have the household, some of the electronics, some of the utensils, bag, clutches, soft toys, and many more. And our highest selling products are like soft toys, our crockery. We are very specialized in crockery. Sir himself designed each and every crockeries.
Can we move to the next slide, please? Yes. From the image onwards, you can see the feel of Lofa. Like every Lofa store has a feel of 5-star. Like the store are built with the premium architecture conducts and aesthetic interior designed by leading architecture and designer segment. Can you see the store? The whole store is personally designed by sir. जब भी किसी भी स्टोर का लॉन्च होता है, इनॉग्रेशन होता है, या कोई भी अगर फ्रेंचाइजी भी लेता है, तो पर्सनली हमारी टीम से एंड सर खुद पर्सनली विजिट करते हैं टू सी द लुक एंड फील ऑफ द स्टोर. उन्होंने कैसे जमाया है, कैसे सजाया है. जैसे ही कस्टमर एंट्री होता है, किधर से एंट्री हो रहा है एंड सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा डिस्प्ले होना चाहिए. लाइक देयर आर मेनी थिंग्स टू लुक आफ्टर दैट. So yes, he took very seriously about the look and feel of the store interior as well as of the exterior part. Also location. Yeah, also the location part. Can we move to the next slide, please? Yes. About Lofa, Jitendra Nawani, he is with me. He is the founder of the Lofa, and Lofa ke pehle he is also founded a garment company named Nordstrom. Like he worked there for 10 to 15 years. He took that company from 0 to the 100 CR. Like just an investment of 6 lakh to the 100 CR, he has taken the company to the another heights. But जब वो गारमेंट कंपनी हमारी सेटल डाउन हो गई एंड टीम वाज लुकिंग आफ्टर दैट एंड ही वाज हैविंग सम स्पेयर टाइम, सो वन सिटिंग इन अ ऑफिस उन्होंने सोचा कि मैं गारमेंट्स तो बहुत अच्छा बना लेता हूँ, मैं कपड़े सबको बहुत अच्छे पहना सकता हूँ, क्यों नहीं हम लाइफस्टाइल्स पे भी आ जाएं. लाइक किसी को घर अच्छा बनाना है, किसी को लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि जो चीज़ें हमारे इंडिया में नहीं होती हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे इंडिया में ये सब चीज़ें क्यों नहीं आती हैं. सो लुकिंग ऑल दोज कॉन्सेप्ट, उन्होंने एक ब्रांड ही कम विथ अ प्रोजेक्ट नेम्ड लोफा एंड ही पर्सनली वर्क सो हार्ड एक एक प्रोडक्ट के पीछे. लाइक ही स्पेंड्स मंथ एंड मंथ उसका पूरा R&D करना, प्रॉपर करना और हमेशा कुछ नया लाना कि जो हमारे इंडिया अभी नहीं ले आया है. सो फ्रॉम अप्रैल 2019 उन्होंने लोफा को स्टार्ट किया है एंड वी आर गेटिंग वेरी वेरी अमेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच एंड एवरी सिटी. लाइक यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड, फर्स्ट स्टोर हुआ था हमारा जून में, ओपन हुआ था. जुलाई 2019 सेकेंड स्टोर हुआ था रायपुर में. अक्टूबर 19 वी ओपन इन पुणे, Nagpur and Indore. December 19, new product with line of global appeal. July 20 opens in Jabalpur. August 20, like recently, just after the lockdown, we open a store in Mumbai, and still we are planning for expanding the stores in Mumbai. And out of which these stores, only two stores are of franchisee store, like Jabalpur and Pune store, both are the franchisee store. And believe me, जिन्होंने भी वो फ्रेंचाइजी लिया है, they are like happiest person. They are getting amazing response out of it. Next slide, please. Yes. Why Lofa? Brand popularity. Like कि कहीं पे भी स्टोर ओपन होता है ना तो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाता है. I'll give you the just live example of मुंबई स्टोर. हमारा मुंबई स्टोर हुआ, हमने बहुत अच्छा PR मीडिया कवरेज किया. लाइक कृष्णा, कश्मीरा एंड रजनीश तुक्कल, मेनी सेलिब्रिटी विजिटेड टू अस. सो विदाउट पेइंग देम एक्स्ट्रा, इन लोगों को इतना अच्छा लगा कि हर किसी ने अपने सोशल मीडिया पे हमारे ब्रांड एंड हमारे स्टोर के बारे में मेंशन किया है. सो लुकिंग आफ्टर देयर स्टोरीज एंड लुकिंग आफ्टर देयर मेंशन, we have got the very good customer range from the celebrity, from the film industry and from the other celebrities. You can't believe, एक बार हमारे स्टोर में एक फिल्म इंडस्ट्री से कोई शॉपिंग करने आया था एंड उन्होंने हमसे पूरा लाइक 1.5 लाख का परचेज किया टोटल. इतना सारा परचेज किया. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिलिंग वी सेड कि सर इट्स 1.5 लाख. तो हिज एक्सप्रेशन वाज
बस अगर मैं कहीं बाहर से परचेस करता तो कम से कम मुझे 3 लाख का बिल देना पड़ता. So brand is popular, and in spite of popular, we also take care of the pricing point. Very, our main USP is the pricing point. Next, we will move to the lucrative model, like high ROI with the less payback period. We will go into the detail in the other slides. Like incredible margin, Lofa has an extensive product portfolio with the incredible margin of 32% on entire range. Comprehensive support, like Lofa exclusive training, supplies and operational support to the franchisee partner. ऐसा नहीं है हमारे साथ कि हमने किसी को फ्रेंचाइजी दे दिया, पैसा आ गया तो भूल गए. नो, फ्रेंचाइजी देने के बाद भी हमारे सर और हमारी टीम पर्सनली विजिट करने जाते हैं लोकेशन देखने के लिए कि जो भी लोकेशन आपने फाइनल किया है, वेदर यू आर एबल टू जनरेट सेल आउट ऑफ इट और नॉट. ROI निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा तो कितने टाइम में निकलेगा, बिकॉज इट्स ऑल डिपेंड अपॉन लोकेशन टू लोकेशन. So we will be there for your support to and fro whenever you need. Something for everyone. Something for everyone means कि हमारे लोफा स्टोर में like from a baby to the old age people, कोई भी आ जाए, we have something for them. We have the baby products. We have many products for the women, bags, clutches. We have products for the students like diaries, pens, and also for the old age people. Like we have something for each and everyone. मतलब कोई भी अगर स्टोर में एंट्री करता है तो we are sure about it कि खाली हाथ तो वापस नहीं जाएगा. And Conversation 85%. yes, and our conversion ratio is 85%, and I feel that is amazing. Growing presence, it is successfully operating a chain of stores in different states of India, or we have already discussed about it. Like Arjuna have already mentioned, like we have 7 stores as of now, and we are growing it. Next slide, please. Franchisee profiling. First, professional from FMCG, retail industry willing to turn entrepreneur. Yes, they are most welcome. Premium retail store willing to connect with an international brand. Yes. Entrepreneurs with passion for retail business. Investors willing to invest in a lucrative business model concept. Like it is open for everyone. Next slide, please. यस, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पहले ही ब्रीफ कर दिया था. लाइक ब्रांड सपोर्ट क्या क्या मिलेगा आपको. सेटअप एंड सिलेक्शन, द ब्रांड विल असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द राइट लोकेशन. कोई भी अगर हम शॉप फाइनल करते हैं तो सबसे पहले उसका लोकेशन देखते हैं एंड उसके नियर बाय शॉप से उनका फुटफॉल, एंड देयर आर मेनी थिंग्स टू लुक आफ्टर कि क्या क्या होता है. एंड ट्रेनिंग, लाइक अगर फ्रेंचाइजी मॉडल भी है, अगर कोई हमारे एम्प्लॉयज वहाँ पे ज्वाइन होते हैं इनिशियली, you will be getting some support from the brand से ही कोई आता है आपके स्टोर को पूरा मैनेज करता है. अगर वहाँ पे आपके खुद के एम्प्लॉयज हैं तो we will be providing them proper training and we will be providing them software. We will be looking after the inventory management. Like that like brand go into the deep of inventory management कि अगर हमने स्टार्टिंग में सेटअप कराया like 6+1 सब 6 SKU जमा दिए, उसके बाद फिर कौन सा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है उसका वी विल आस्क यू टू लाइक इसका आपका 12 का इन्वेंट्री रखना चाहिए. सो ब्रांड विल बी देयर टू असिस्ट यू इवन फॉर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट. मार्केटिंग, like we have already 7 stores running with us, so we are having the marketing sheets and some of the marketing strategies. So brand will be sharing you that as well. Facilitation, the franchisee will benefit from ongoing R&D, product development and enhancement and other market development initiatives taken by the brand from time to time. Like कि अभी हमने स्टोर लॉन्च किया तो ऐसा नहीं है कि 100 SKU तो उसी से स्टोर चलेगा. We are coming up with new products like in every month or 2. Advertising and promotion, yes, company will also help like franchises to help with the advertisement parts, like we'll be providing with the brochures, pamphlets, banners, etc. PR coverage, like जब भी स्टोर लॉन्च होता है तो we try कि हम बहुत अच्छा PR coverage वहाँ पे दें. So हर स्टोर का PR coverage has very different. Like अहमदाबाद स्टोर में हमने लॉन्च किया था तो we have coverage
with 70 influencers. So हर पूरे influencers ने हमारे बारे में वहाँ पे अपनी stories डाली थी, news feed डाला था, and वहाँ के also local newspaper ने. So it got us a very good eyeball PR coverage. So it depends upon city to city कि किस type का PR coverage होना चाहिए. Next slide, please. Regarding the financials part, I would like to introduce Namdev sir from our team. He will be taking this model ahead. Thank you. Hello team, hello everyone. Please next slide please. Hello. हमारे पास मॉडल है फोफो, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी इन्वेस्टेड, जिसमें फ्रेंचाइजी का इन्वेस्टमेंट हम लोग दो मॉडल में चल रहा है फिलहाल, एक 600 स्क्वायर फीट और 1000 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 36,18,000 और आपका जो आरओआई है, आरओआई आ जाएगा 2 साल 6 महीने में। इसमें हम लोग टीयर 2 सिटी में देख रहे हैं आपका 80 to 90,000 के आसपास का रेंट, आप अगर मतलब स्टॉक देख रहे हो तो आपको रेंट आ जाएगा। सेकेंड आता है अपना 1000 स्क्वायर फीट का। 1000 स्क्वायर फीट का अपना इन्वेस्टमेंट है 52 lakhs और आपका जो आरओआई रहेगा 3 साल 5 महीने में आपका आरओआई आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। There's further slides, Priyanka ji, or Can you repeat it? Are we done? Do you want us to take over, or you have more slides you want to continue with? No, we are done with the PPT presentation. We are open for Q&A round. Okay. Thank you, Jitendra ji. Thank you, Priyanka ji, for coming on the call. And we all know that kind of work you've done and your passion towards design. It's very reflective, and I've seen the kind of work you've done is remarkable. And India needed a lifestyle store, especially the category you had a complete vacuum, because home utility, home decor, crockery, utility products. This has a very, very large demand. Apart from that, you have soft toys and a lot of other things. So this is a very high demand market, not only in the tier A cities, but tier B, C, and so forth. Before we go through, I saw that you have also opened up few stores in last few months also. How is the response which you are facing in this period? Because a lot of people are thinking that COVID में लोग इतनी sale नहीं हो रही, और जबकि अगर reaction ये है कि a lot of good sale numbers are coming in. What is happening on the sales front at your stores? Yes, being very honest, हमने कोविड के बाद 2 स्टोर्स ओपन किए हैं, एक जबलपुर, एक मुंबई में अभी तक लोकल ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है। यू ऑल नो कि मुंबई जब तक लोकल स्टार्ट नहीं होता तब तक फुटफॉल नहीं आता। सो our Mumbai ka store is performing so, but we are getting feedback from the market, like people are loving our products a lot, and we are promoting our stores, but we can track that we are increasing our sale every day. Like when we started, we got the sale of 35,000 per day. Now sometimes it's 37, now moved to the 39. Now we are growing our numbers. And Jabalpur, then regarding the Jabalpur store, वो भी हमने कोविड वहाँ पे लॉकडाउन पूरी तरह से खुल चुका है, वो भी हमने ये सिचुएशन के बाद ओपन किया है, एंड दैट स्टोर इज परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल, लाइक 50,000 सेल पर डे। हाँ, और यही सरप्राइजिंगली मैंने भी देखा, इस कैटेगरीज को वैरायटी रिटेल कहते हैं। वैरायटी रिटेल की जो इंस्टीट्यूशन हुई थी 5-6 साल पहले हुई थी, and it started from China and then spread all over the world. A lot of Scandinavian brands came in, a lot of European brands came in. बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स वर्ल्ड में बने क्योंकि ये कैटेगरी अवेलेबल नहीं थी।
ये Yes. इम्पल्स और होम की यूटिलिटी की चीजों के अंदर, जिसमें आप अगर स्टोर में चले जाओ तो आपको कुछ ना कुछ अपने लिए मिल ही जाएगा. So this was a variety retail, इसको variety retail करके कैटेगरी ये नई इस्टेब्लिश हुई, और इसमें लास्ट 5 सालों में वर्ल्ड के अंदर कम से कम 50,000 स्टोर खुले डिफरेंट ब्रांड्स के, डिफरेंट स्ट्रक्चर के. एंड आई थिंक लोफा इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इंडियन डिजाइन थिंकिंग, क्योंकि कभी कभी लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाहर से प्रोडक्ट लेके आते हैं, उनकी डिजाइन एलिमेंट, डिजाइन थिंकिंग नहीं होती. और जो लोफा ने किया ये एक बहुत रिमार्केबल चीज है, क्योंकि हमने अपना प्रोडक्ट इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बनाया है. एंड दैट्स वेयर advantage really coming in, because a lot of people think that just buying and shipping products from overseas markets and bringing to India would work, because India की sensibility जो है वाइट डिजाइन के लिए तो मॉडर्न हो रही है, लेकिन हमारी अपनी सेंसिबिलिटी भी है. जैसे क्रॉकरी है, हमारी क्रॉकरी के अपने डिजाइन वैल्यूज है, क्योंकि हमारा फूड डिफरेंट है. So a lot of things will change in the way people in India consume. So I should congratulate you that you have really created India's own lifestyle brand and India's own variety retail brand, which has a huge opportunity to go to tier 2, tier 3 city, जहाँ पे एक तरह का ये स्टोर में आना सेलिब्रेशन है. It is like a celebration. You go there, you can pick up something for your kids, you can pick up something for your home, you can pick up something for utility and things of that nature. An average person एक variety retail के अंदर month में एक बारी परचेज जरूर करता है. तो ये अनलाइक अदर प्रोडक्ट्स, लाइक फैशन में जितेंद्र जी का एक्सपीरियंस है, फैशन का जो टर्न ओवर होता है, स्टॉक टू टर्नओवर, वो होता है 4 टाइम साल में. आप अगर स्टॉक 1x डालते हैं तो आप 4 बारी टर्न आउट कर पाते हैं. वैरायटी रिटेल के अंदर ये 6 to 8 और समटाइम 12 टाइम्स तक भी होता है. योर टर्नओवर ऑफ द स्टॉक इज मच फास्टर. सो जबलपुर में 50,000 की सेल करना ये नॉर्मल नहीं है. दिस इज बिकॉज दिस एज अ स्टोर हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन टाइपिंग, एंड सिटी लाइक जबलपुर यू कैन गेट अ स्टोर इन अ गुड रेंटल ऑल्सो. सो लेट्स टेक दिस एज एग्जांपल. जबलपुर के अंदर क्या रेंटल दे रहे होंगे हम आज जबलपुर के अंदर? Now 75-80. 75,000 rupees is the rental. Yes. And the sale is about 50,000 rupees. Yes. And then 50,000 rupees means that you will averagely come out about 15 odd lakh rupees of sale. And this is what I'm saying, COVID going on, consumption low. इसमें क्या मार्जिन जितेंद्र जी मिल जाता है एवरेजली? 32%. NOT, net of taxes, 32%. 32% net of taxes. So Yes. This is a discount on MRP. Yes. MRP से डिस्काउंट करते हैं 32% का. तो 32% अगर डिस्काउंट है तो टेक्निकली आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख और 5 लाख रुपए करीब ग्रोस आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने के बाद मिलता है. उसमें आपने 75,000 रुपया रेंट दे दिया, 25,000 रुपया बिजली पानी का खर्चा दे दिया, 50,000 के करीब 60,000 के करीब आपकी सैलरी चली गई, और अगर आप 20-10,000 रुपया और भी कुछ डाल लें तब भी you can take home 3 odd lakh rupees in a month. We're not even 3 lakh rupees, 2.5 lakh rupees. The total investment in say a store like Jabalpur कितना रहा होगा capex में? About 30. और उसको भी दो तरह पे break करना है, क्योंकि एक तो capex है, 30 lakhs. एक capex होगा और एक working capital जिसे हम स्टॉक डालते हैं. स्टॉक की कोई वरी नहीं, क्योंकि स्टॉक फास्ट मूविंग है. हम सिर्फ और सिर्फ अगर इंटीरियर की बात करें, वो कितना कॉस्ट पड़ता है? करीब 2,500 रुपए स्क्वायर फीट. 2,500 रुपए स्क्वायर फीट. 1,000 रुपए का 1,000 स्क्वायर फीट का स्टोर है वहां पे. कारपेट 600 स्क्वायर फीट है. 600 का मतलब आपका 12 से 15 लाख रुपए आपका इंटीरियर पे लगेगा. यही आपका केपेक्स है. 2-3 लाख रुपए आपने वर्किंग डिपॉजिट दिया, तो आपका जो टोटल केपेक्स है 15-16 लाख रुपए में आप अपना स्टोर तैयार कर सकते हैं. उसके ऊपर आपका स्टॉक है. स्टॉक तो फास्ट मूविंग है. इट्स लाइक FMCG, इट मूव्स वेरी वेरी फास्ट. तो आपको कोई स्टॉक की रोकने की खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है. जैसे इन्वेस्टर हमेशा सोचते हैं कि why people come to us and say we want to invest into company जहाँ पे स्टॉक का रिस्क नहीं हो. फास्ट मूविंग स्टॉक्स के अंदर आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं. तो आपकी जो टोटल केपेक्स इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 15-16 लाख रुपए रहती है. अगर आप 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहे हैं जबलपुर जैसे शहर के अंदर, तो टेक्निकली 7 से 8 महीनों में आप अपना केपेक्स निकाल लेंगे. केपेक्स निकालने के बाद आप डी रिस्क हो गए. आप डी रिस्क हो, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई इशू नहीं है. यू कैन रियली कंटिन्यू टू डू एंटायर थिंग, एंड और कंपनी सपोर्ट्स यू इन अ लॉट ऑफ फ्रेश स्टॉक. किस साइकिल पे हम नई डिजाइन एडिशन निकालते हैं जितेंद्र जी? कैसे कितनी हम ऑप्शंस, कैसे नए डिजाइन और कैसे सप्लाई चेन वर्क करती है? एक्चुअली होता क्या है, जैसे पुराना कोई स्टॉक है पहले वाला, जैसे कोई पहले एक बॉटल आई, अगर वो फिनिश हो जाएगी तो उसके बाद नया ही आएगा, रिपीट नहीं आएगा. रिपीट और एवरी मंथ 2-3-4 ऐसे नए प्रोडक्ट आते ही हमारे पास, हम लोग लॉन्च करते हैं नई चीजें. और अभी मोस्टली अभी क्या कर रहा हूँ, जैसे मैक्सिमम मैं खुद यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करा रहा हूँ इंडिया में, मेड इन इंडिया करके.
सो देखने में ऐसा लगेगा जैसे आप बाहर का ही प्रोडक्ट है, लेकिन है मेड इन इंडिया। सो आप भी बोलेंगे कि ये सर कैसे पॉसिबल है, लेकिन हम लोग बनवा रहे हैं अभी यहाँ पर। सो हम और लोग ये अच्छी बात है कि ये तो आई थिंक आज हर इंडियन जो है वो उस माइंडसेट को सोच रहा है कि मेक इन इंडिया सीरीज है, मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये सारी अच्छी कंपनीज इस अपॉर्चुनिटी को देख रही है। करेक्ट Everybody is entitled. India is very capable. You know, yesterday I was reading on the other side. सारा वर्ल्ड कहता है कि वर्ल्ड की जो बेस्ट स्कॉच होती है वो यूरोप से आती है, स्कॉटलैंड से आती है. But actually, Indian scotches now are among the first 15 or 20 brands in the world. So ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने की बात है, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ बैन करना शुरू किया उनको बंद करने के लिए, तो लॉट ऑफ इंडियन प्लेयर्स स्टार्टेड इन्वेंटिंग. नाउ आवर बियर इज बीन इंपोर्टेड टू थाईलैंड. देयर आर बीरा करके जो बियर है इंडियन की, अब वो थाईलैंड में एक्सपोर्ट हो रही है. तो इंडिया हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन एवरी स्पेस. इन आपकी स्पेस के अंदर तो शुरू से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वी आर वेरी गुड इन आवर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज in different places, but we have never given an opportunity. और organized distribution नहीं है. प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आज एक SKU बनाता है कोई, अगर समझो एक प्लास्टिक में काम करता है, एक स्टोन में काम करता है, तो बेचारा वो एक ही SKU करता है, वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना पाता. Companies like Lofa, when they come in and they set up say hundreds of stores, they give this opportunity to these credible manufacturer to use their distribution. Correct. Why we look at exporting only? Why we don't look at domestic market? Because हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की अपॉर्चुनिटी नहीं. तो मुझे लगता है कि अगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को एम्पावर करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, आज लोफा के 100 स्टोर्स बनेंगे तो बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एम्पावर हो जाएंगे. Correct. और वो दे वुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फॉर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. सो दैट्स अ वेरी गुड इन दैट. सो 4 चीजें वैरायटी रिटेल के अंदर बिजनेस को डिजाइन करने के लिए होती हैं, जिनको हम 4 डिफरेंट बॉक्सेस ऑफ रिटेल कहते हैं. जैसे उसमें से एक होता है डेस्टिनेशन प्रोडक्ट, जिसकी वजह से कस्टमर आता है. वो एक बहुत जरूरी होता है कंपनी के अंदर कि जब भी कोई स्टोर को देख सोचता है कि वहां पे ही जाना है मुझे करने के लिए. दूसरा होता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट, जिसमें हम बेस्ट हैं कोई और रिटेलर से. जैसे अगर आज जबलपुर के अंदर कोई सोचे कि भाई इस कैटेगरी के अंदर लोफा पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि और कहीं कोई मिलेगा ही नहीं. तीसरा होता है सीजनल प्रोडक्ट, जो सीजनल के हिसाब से आता है और सीजन के हिसाब से आता है. जैसे भाई क्रिसमस आएगी, वो दिवाली आएगी, कुछ और आएगा, तो ऐसे फेस्टिवल्स जब आते हैं या कोई भी आता है तो सीजनैलिटी होती है, या समर या विंटर या ऐसा कुछ भी. और फोर्थ होता है इम्पल्स, जो आप स्टोर में आ गए तो कुछ पसंद आ गया तो आपने ले लिया. तो आपका जो पहले 2 फॉर्मेट हैं, डेस्टिनेशन और स्पेशलिटी, क्या है? चारों ही है सर हमारे पास. नहीं, चारों में से अगर डिफाइन करना हो कि आज की डेट में क्या ऐसी चीज है जो जितेंद्र जी आपको लगता है कि हमसे अच्छी कोई नहीं करता, जो आपकी स्पेशलिटी बन जाती है? सर हम सारे प्रोडक्ट ऐसे लाते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता. हम लोग सारे प्रोडक्ट ऐसे ही चूज करके सोच के लाते हैं. सो बाकी इम्पल्स बाइंग वाले हमारे पास ज्यादा है कि जैसे कोई विजिट करने आया, घूमने आया, तो अंदर को विजिट करेगा तो वो लेके ही जाएगा. तो ये हमारा मेन ऐसा हमारा जो कन्वर्जेशन है 85% है सर. अगर हमारा 100 पीपल अंदर आते हैं अगर, तो उसमें 85% लोग लेके ही जाते हैं. बहुत अच्छा कन्वर्जन इशू है, बहुत अच्छा. और टिकट वैल्यू क्या मिल रहा है एवरेजली? सर टिकट वैल्यू कस्टमर कर पा रहा है? ये आ रहा है सर 1500 से 2000, 1500. 1500 से, that's very good ticket value, actually very very good ticket value. 1500 से 2000 ticket value is a very good, you know, then you even to achieve a sale in a month of 50,000 rupees a day, 50,000 rupees, you need to have only 25 transactions. In a variety retail 25 transaction is nothing actually. और अभी तो सीजन शुरू हुआ है, अगले 5-6 महीनों में ये सेल कन्वर्जन स्ट्रक्चर बहुत बड़े लेवल पे जाएगा. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन. नाउ अगर हम 1 मिनट के लिए दोबारा वो स्लाइड खोलें फाइनेंशियल वाली, जस्ट टू एक्सप्लेन आवर ऑडियंस, अगर हम 1 मिनट दोबारा खोल सकें तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन आई लाइक टू ब्रिंग इन Tina also to take up some questions. स्लाइड पिछली पुराना वाला ही चेंज होके नहीं आया, उन्होंने अभी भेजा है मुझे, तो उनको वो वाला ही करना चाहिए. नया उसको चेंज बोलो चेंज. और किसी के पास अपनी लोकेशन हो तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. और क्योंकि आपकी लोकेशन अगर अपनी है, और आज की डेट में बहुत लोग हमारे पास आ रहे हैं जिनके पास अपनी एक लोकेशन होती है और वो कुछ शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सो प्लीज इफ यू हैव योर ओन लोकेशन, या आप किसी पर्टिकुलर सिटी में ये खोलना चाह रहे हैं, तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है Q&A बॉक्स में जाइए, लिखिए. हम ये क्वेश्चन जितेंद्र जी से, प्रियंका जी से पूछेंगे कि वो सिटी के लिए ओपन है या नहीं. इनके पास बहुत इंक्वायरीज हैं, मल्टीपल स्टोर्स इंडिया भर में आ रहे हैं. तो अगर, और ये
ओवर क्राउड नहीं करना चाहते मार्केट को, सो चूज करके लोकेशन दे रहे हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलर लोकेशन में इंटरेस्ट है तो आप अपनी लोकेशन के बारे में Q&A बॉक्स में लिखिए, तो वी विल टेक इट अप एंड देन वी विल टेक इट विद डिस्कशन अहेड। Yes. So we have, just to see the slide, we have a 400 square feet store, we have a 600 square feet store, and we have a 1000 square feet store. हाँ पुराना ही सर एक्चुअली वो लोग चेंज है नया Sir, we have asked your team to revise about it. and they revised it, but actually this is a old PPT. Just Okay, we can have a new PPT, no problem. We can. Archana, you have a new PPT with you? ये वजह से कोमल हाँ उन्होंने भेजा है। बोलो कोमल है सर। एक्चुअली कोमल से डिस्कस हो गया हमारा, कोमल मैडम से, तो उन्होंने आपको शायद भेजा होगा। मुझे तो भेजा, तो उनको उनके पास ही पहुंच ही गया रहेगा। आप भी अपना फॉरवर्ड कर दीजिए, हम उसको भी खोल देते हैं, तब तक हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं। क्या आइडल फॉर्मेट हम सोचते हैं हमें करना चाहिए जो बिल्कुल राइट फॉर्मेट होगा साइज के हिसाब से, जितेंद्र जी? सर एक्चुअली हम लोग अभी जैसे हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस हम लोगों ने सबसे फर्स्ट स्टोर ओपन किया अहमदाबाद में, वो था करीब 3000 स्क्वायर फीट, बहुत वो तो बड़ा स्टोर है आपका। हाँ जी। सो हमने देखा कि सर उतना बड़ा स्टोर ओपन करके कोई सिर्फ हम अपने खर्चे ही बढ़ा रहे हैं। और सो फिर उसके बाद हमने जब लास्ट जबलपुर खोला, जबलपुर वो 600 में खोला, तो हमने देखा कि सर सेल में सिर्फ बहुत कम फर्क आ रहा है और खर्चे हाफ, उससे भी हाफ, आधे खर्चे हैं, जस्ट 50%। मैन पावर कम है, ऑपरेशन एक्सपेंसेस कम है। यस। जबलपुर में सबसे बेस्ट क्या है कि ऑनर खुद बैठ रहा है वहां पर, ऑनर। सो ऑनर जब बैठता है ना तो सेल ऑटोमेटिक बूस्ट होती है वहां पर, हमने ऐसा देखा उसके यहाँ। सो हम लोग अभी देखेंगे कि 600 to 700 स्क्वायर फीट हो तो बेस्ट, सबसे बेस्ट। और उसका 600 स्क्वायर फीट में कितना स्टॉक डल जाएगा, कितना 20 लाख का, 20 लाख 20 लाख एमआरपी पे या उस पे? एमआरपी पे। तो उसमें से अपना डिस्काउंट काट के तो अपने जो पैसा डालना पड़ेगा वो 12-13 लाख रुपए डालना पड़ेगा। नहीं सर, मिनिमम 15 लाख, मतलब 15 लाख का स्टॉक खरीदना पड़ेगा, 15 लाख रुपए केपेक्स और 2-3 लाख रुपए का जी करेक्ट वो जो डिपॉजिट वगैरह होगा। करेक्ट। हाँ, तो मतलब आप 30-35 लाख रुपीस में कर सकते हैं। इसमें 15 लाख रुपए का आपका वर्किंग कैपिटल रहेगा जो स्टॉक के केस डाला आपने, 10-15 लाख रुपए का आपका केपेक्स रहेगा, बाकी आप डिपॉजिट देंगे तो आप ये स्टोर खोल सकते हैं। और टेक्निकली आपका केपेक्स जो है वो 6-7-8 महीने में वापस आ जाएगा और वर्किंग कैपिटल पे आपको रोटेशन। एक्चुअली हम लोग सर, अपना नेचर ऐसा है कि अपन जो कैपेक्स है ना, आरओआई, वो हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के बताएं तो चलेगा। कि हम उसको 1 साल बोलेंगे तो सर बहुत ज्यादा जल्दी है, हम उनको बोलेंगे कि सर 2 साल में आएगा तो भी बेस्ट है उस हिसाब से। मतलब आज की डेट में अगर आरओआई, अगर आप स्टॉक को भी डाल लो केपेक्स में, अगर सब कुछ उसके ऊपर रिटर्न दे दो तब भी 2 साल में आ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन कभी लोग गलत समझते हैं क्योंकि स्टॉक जो है वो ये कोई फास्ट मूविंग स्टॉक है, तो इस पे रिस्क नहीं है, ये आपका ऑपरेटिंग वो देता है। तो आपका रिटर्न जो है, मैं हमेशा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अलग समझना चाहिए, ऑपरेटिंग कैपिटल को अलग समझना चाहिए स्टॉक में, लेकिन आपको प्रोविजन रखना पड़ेगा कि उतने स्टॉक तो आपको डालना ही है, तो उसके ऊपर रिटर्न चाहिए। तो बहुत अच्छी रिटर्न है अगर आप 2 साल में भी अगर रिटर्न लेते हो। और सबसे अच्छी बात जो जितेंद्र जी कही कि अगर ओनर ऑपरेटर है, अगर ओनर खुद इन्वॉल्व है, तो ये बिजनेस के अंदर बहुत ही अच्छी रिटर्न आपको मिल पाती है। तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 600 से 700 स्क्वायर फीट के स्टोर्स जो इंडिया में कहीं पर भी हम खोल सकते हैं, बेशक आप कोल्हापुर में हैं, बेशक आप नागपुर में हैं, बेशक आप अमरावती में हैं, कहीं आप पंजाब में हैं। दिस इज अ न्यू शीट व्हिच वी हैव गॉट। करेक्ट इजीली सर। So as I said, 35 lakh rupees is your total investment. 35.78 is your total investment. Return on investment is 50%. 2 years 8 months के अंदर है, including if we take the stock and try to make a return on that. And on a master franchise, your master franchise fees is 19.8 lakh rupees for a format. And उसपे भी रिटर्न आपको अच्छी है। और मास्टर फ्रेंचाइज पे जाएं तो कहाँ लोकेशंस पे हम मास्टर देख रहे हैं, और ये स्टेट वाइज मास्टर देंगे हम लोग? सर स्टेट वाइज दे सकते हैं हम लोग, नो इश्यूज, स्टेट वाइज। ओके, स्टेट वाइज मास्टर can be given. So we can look at giving a master on the state wise. So if say you are coming from say state of Tamil Nadu and you want to do 20-25 stores under you,
एंड देन यू कैन बिकम मास्टर। पहला स्टोर आप अपना खोलेंगे, उसके बाद आप एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाइए, या स्टॉक डायरेक्टली कंपनी से जाएगा। करेक्ट करेक्ट। सो स्टॉक डायरेक्टली कंपनी से जाएगा, तो आपको सिर्फ अपना स्टॉक अगर मास्टर फ्रेंचाइजी अगर हम लोग दे रहे हैं तो जी स्टॉक मेरे हिसाब से मास्टर फ्रेंचाइजी को ही जाना चाहिए डायरेक्ट वहां से, यहाँ से, तो वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट करे तो बेस्ट है। हाँ, वो भी हो सकता है, दैट आल्सो इज अ पॉसिबिलिटी, दैट कैन बी आल्सो अ गुड पॉसिबिलिटी, कैन बी डन, that is also quite a bit of a good possibility which we can do. बेस्ट सर वही रहेगा कि अगर हम लोग एक एक स्टोर को यहाँ से करेंगे तो शायद फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अगर हमने उनको पूरा स्टॉक दे दिया तो वो इजीली उनको प्रोवाइड कर सकेंगे वहां से। हाँ, करेक्ट। So it's a very interesting. So this is that's very important. If you want to take a master also, please go and write this. Master में आपकी incomes multiple हैं, आप जो आगे franchise देते हैं उसमें भी आपको sharing मिलती है, और जो आप जितने franchise आप अपने नीचे करेंगे और आपको stock की भी sharing मिलती है. So you get a multiple incomes if you are able to see the masters. Correct. Sonia, over to you for your questions, and if you want to take up from the audience also. Thank you. Thank So you you so can much, move the Jitendra ji. slide, May please. quickly, I'll take some questions from the audience. I think the first question which I want to pick first and foremost, while we're talking about the stock, it is a fast moving stock, but is there any stock correction also? Because every outlet would have some dead stock which does not move. So as a company, you also do some kind of stock correction with the franchisee, and if yes, what percentage of the stock is corrected, and in what form? You know, is it a credit which is given to the franchisee? How do you handle stock corrections? एक्चुअली फर्स्ट टाइम स्टॉक करेक्शन, जैसे जो फर्स्ट लॉट आएगा आपके पास वो आपको आइडिया नहीं कि क्या बिकने वाला है क्या नहीं बिकने वाला। सो कंपनी आपको फर्स्ट स्टॉक दे देगी अपने हिसाब से। अगर आपको एक बार विजिट करेंगे स्टोर हमारा, सो अगर वो उनको ऐसा बोलेंगे कि ये मेरे पास ये स्टॉक ये मेरे पास नहीं चलेगा, तो कंपनी आपको फोर्स नहीं करेगी, लेकिन वो स्टॉक करेक्शन नहीं होगा फर्स्ट टाइम वाला। उसके बाद अगर आप जो बोलेंगे आपको वो वही हम आइटम देंगे, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि भाई ये लेना पड़ेगा या ये बेचना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, उसके बाद अगर कहीं सपोज कहीं ऐसा अटक रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कहीं रुक रहे हैं, उनको प्रॉब्लम जा रही है और हमारा कहीं और मूव हो रहा है, तो हम उनसे हम ट्रांसफर करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। Okay, so जो आपका मॉडल है, this is outright model except for the first stock which goes to the franchisee. Ideally, you would not do any kind of stock correction. It is based on the requirement and as per the location, and also maybe what franchisee asks for. Okay, all right. And दूसरा question, Jitendra ji, which I want to also check is on the locations. What kind of cities you want to reach out to? Because I'm seeing inquiries. जैसे पुणे से I have one of our viewers, Mr. Prakash हैं. I think he's writing from Pune. He wants to open in Pune. Another inquiry which I'm seeing is from Ahmedabad. You know, he's Mr. Naisarg Bhavsar, and he says he already has seen one of your outlets, and his location is closer to your current location. He has a property on CG Road. So if you can also maybe elaborate what locations would you want to move, and अगर आप एक सिटी में 2 या 3 outlets भी खोलते हैं तो उसमें क्या distance देखेंगे, क्या radius? 3 to 4 kilometers distance, 3 to 4 kilometers. Okay, and the CG Road particularly, will you be open for that? Because I don't know where your current location in Ahmedabad is. No. Is it too close to your current outlet? Yeah, very close. So no possible. All right. And third, Jitendra ji, जो SKUs हमारे कितने हैं? Because I'm seeing one of our viewers, he wants to have the entire list of products that we have. You know, कितना हमारे SKUs हैं? Broadly, we can share the categories one, and the list can also be shared 101. So we can share maybe on a one-on-one discussion with the investors. But normally जो हमारा SKU size है वो कितना बड़ा है? SKUs actually मेरे पास 50 से 60 categories हैं total. Categories and SKUs 500 to 600. Okay, and normally because आप कह रहे हैं हर एक लोकेशन के हिसाब से अलग कैटेगरी SKUs वर्क करते हैं, नॉर्मली एक स्टोर में कितने के SKUs रहते हैं? If we talk about 600 square feet of store. रायपुर में 15,000, इधर रायपुर 15,000। जो आपका 600 और 1000 square feet का मॉडल है, उसमें कोई SKU डिफरेंशिएशन है या you offer all the SKUs in both these formats? Actually हमारा स्टोर एक रायपुर में स्टोर है, वो 1100 स्क्वायर फीट, उसमें 15,000 SKUs हैं, 15,000. Okay, all right.
And what kind of training do you impart to the franchisee? And because a lot of people will come from different varied experiences. Not everybody would come from a retail. So हम लोग प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग नो प्रॉब्लम, ट्रेनिंग हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। हो सकेगा तो हम लोग एक हफ्ते के लिए हमारा कंपनी का बंदा भी वहाँ रहेगा, नो प्रॉब्लम। जब पूरा कंप्लीट सीख नहीं लेगा तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। ठीक है। एंड लोकेशन जितेंद्र जी, आई थिंक वी मिस्ड आउट, व्हाट लोकेशंस, कौन सी सिटीज होंगी इंडिया में वेयर यू वांट टू रोल आउट? आर वी लुकिंग एट पैन इंडिया यूनिट भी आप कहीं भी खोलेंगे या आप कुछ ऐसे मास्टर शुड कम इन? कहीं भी अभी खोल सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। And even smaller locations, like I have Mr. Satinder Makan, he is looking for Maninagar, you know, and he's asking if that location and is suitable. Yes. So फर्स्ट हम लोग विजिट करेंगे, हम लोग देखेंगे जाके कि वो लोकेशन कैसा है और वहाँ फुटफॉल है कि नहीं है। एक्चुअली अगर हमने फ्रेंचाइजी हम लोग दे रहे हैं तो हमारा ये सिर्फ ये मोटो नहीं है कि हमको फ्रेंचाइजी देके फ्री होना है। हमको ये देखना है कि फ्रेंचाइजी अगर हमारे साथ जुड़ रहा है तो वो भी, उसको भी कुछ बचना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। सो एक्चुअली हम लोग जाके पहले हम लोग विजिट करेंगे, फर्स्ट चेक करेंगे ओके और नहीं ओके। और हमको एक्चुअली जो शॉप का जो सामने फ्रंट है वो मिनिमम 15 फीट चाहिए, 15 feet front, या मिनिमम। And जितेंद्र जी, हमारी मार्केटिंग क्या रहती है? When we do a launch in a city, what kind of marketing activities one would you expect the franchisee to do? कोई भी local marketing launch के time, and what support will the company offer? And especially a lot of locations जहाँ पे शायद आपका first market entry है, first time आप खोल रहे हैं, what support would come from the company? Like I have already mentioned, I look after the marketing part. So I have already mentioned कि it depends on city to city. Like हमारा जब मुंबई में स्टोर लॉन्च हुआ था तो we have very celebrities in touch with us. So हमने उन सबको इनवाइट किया था, वो आए थे। बट अगर आप बोलेंगे कि नागपुर में, जबलपुर में, तो we can't take our celebrities over there. तो फिर जब हमने अहमदाबाद में लॉन्च किया था तो हमने वहाँ पे होर्डिंग्स लगाई थी एंड इन्फ्लुएंसर्स के साथ PR एक्टिविटी करवाई थी। जब पुणे में लॉन्च किया था तो हमने डांस ग्रुप के साथ लॉन्च किया था। सो we plan and we decide according city to city, but we make sure कि वो एक अच्छा एंड क्वालिटी काम हो एंड उससे डेफिनेटली कुछ फ्रेंचाइजी जो भी परचेज कर रहे हैं उनको कुछ रिटर्न मिले। Alright. Okay. And हमारा gestation क्या रहता है? What is the lead time for somebody to start the business? For example, if somebody wants to begin, you know, after the location has been finalized, typically what is the time within which the store can be operational? You know, stock कितने time में आता है? How long does it take to get the interiors? And what kind of structure it is? ये prefabricated structures हैं जो वहाँ पे आते हैं, and how typically what time would it take for somebody to go and operate? एक्चुअली ऑपरेट करने के लिए मेरे को मिनिमम हम लोगों को 2 महीने चाहिए, 2 months। Okay. सिविल वर्क हम लोग जिस, अगर छोटी सिटी है कोई तो सिविल वर्क हम लोग वहीं लोकल करा लेंगे। ऑनर तो ऑनर करा सकता है, हमको नहीं कराना, वो भी करा सकता है, नो प्रॉब्लम। बाकी जो मूवेबल फर्नीचर है वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं बॉम्बे से। Okay. और वो एक्चुअली 15-20 दिन, महीने भर में आ जाता है। तो हम लोग 2 महीने का टाइम मांगते हैं और स्टॉक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक रेडी रहता है हमारे पास। ओके, तो अगर करना भी चाहे, अगर आफ्टर द स्टोर सो क्लोज टू 45 डेज अगर एवरेज लिया जाए तो 45 डेज में हो सकता है। यस, हो सकता है। ठीक है जितेंद्र जी, क्वेश्चन मैं लूंगी। मिस्टर जैन इज वन ऑफ आवर कंसल्टेंट्स, ही वांट्स टू नो डज एनी काइंड ऑफ, बिकॉज़ ऑनलाइन मार्केटिंग भी होती है, सो डू यू आल्सो हैव अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर द सेल्स हैपन एंड हाउ इज दैट मैनेज? यू नो, जैसे अहमदाबाद की कोई रिक्वायरमेंट आती है, आपके पास स्टोर भी है वहां पे, इज देयर अ ऑनलाइन sales omni channel presence है आपकी? and if yes, what kind of benefit would a franchisee get अगर उनके पिन कोड में या उनके neighborhood में वो सेल होती है? No, we don't work as of now online part. Okay. It's a pure play retail business, which is Yes, great it's pure. because then you don't have a comparison of the product and no discounting online. So बहुत सारे retailers complain करते हैं कि मुझे वो चीज, वही मॉडल वहाँ पे सस्ता मिलता है। तो ये बहुत सारे variety retails actually don't do online retail. Yes. And even online you inquire, the inquiry goes to the entire thing. We have to encourage people to come down to stores. और क्योंकि experiential है, क्योंकि हर प्रोडक्ट नया होता है और हर नई रेंज आती रहती है। किसी ने क्वेश्चन पूछा कैसे मंथली रेंज निकलती है, 4 से 5 नए प्रोडक्ट रेंज में निकलते रहते हैं। और कंज्यूमर का भी बाइंग साइकिल होता है। जैसे अभी आप दिवाली देखेंगे तो लोग बहुत सारे होम की चीजें खरीदते हैं, ये बहुत क्लियरली होम टाइम होता है। जैसे ही बच्चों की छुट्टियां शुरू होती हैं, बैक टू स्कूल बहुत बिकता है, स्टेशनरी, इन सब चीजों की बहुत होती है। एक टाइम पर्टिकुलर आता है जब गिफ्टिंग बहुत चलती है। सो ये अपने आप ही फ्रेशनेस कर लेता है स्टोर
क्योंकि स्टोर को अपने प्रोडक्ट तो मिलते रहते हैं, लेकिन लोगों का बाइंग कंजम्पशन साइकिल भी इंडिया के अंदर अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि ये वैरायटी रिटेल है, इसमें हर चीज हर के लिए बनी है, तो वो आप उसके हिसाब से हमेशा कंज्यूम करते रहते हैं। जैसे अब आजकल लोग जितना भी परचेज कर रहे हैं, अगर आप देखें तो होम की परचेज बहुत हो रही है, क्योंकि पीपल आर मोर इन होम, सो दे आर बाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम क्रॉकरी टू इवन यूटिलिटी पैन्स, ये वो सब चीजों को बहुत ज्यादा परचेज मिली है। One of the largest categories today, which is in selling in the market, is actually home and home products. Right. Okay, I think if Jitendra ji, एक time हम ले सकते हैं आपसे इस हफ्ते में, because I'm seeing some of you are still, जैसे product को लेके कुछ questions हैं, location को लेके कुछ questions हैं, time कितना लगेगा, and lot of profiles that we are receiving. Agar any time in this week, if you have time, we will request if you can take maybe one-on-one discussion with our viewers. We call it the discovery day, जिस दिन एक इन्वेस्टर अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करता है। ये फ्रेंचाइज इंडिया बहुत सालों से हम करते हैं। उसमें क्या होता है, हम एक एक्सक्लूसिव टाइम देते हैं एक इन्वेस्टर को ब्रांड के साथ वन-ऑन-वन डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि उनके बड़े अपने सिटी को लेकर क्वेश्चन होते हैं, अपनी चीजों के बारे में क्वेश्चन होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स पे क्वेश्चन होते हैं। तो वो हम पहले अपने लेवल पे इन्वेस्टर को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, फिर आपसे उसकी वन-ऑन-वन डिस्कशन कराते हैं कि आपका टाइम जो जाए वो वैलिड और वेरीफाइड, क्योंकि आपने फ्रेंचाइज इंडिया को हायर किया है तो इसीलिए हायर किया है कि हम उसे क्वालिफाई करें और फिर आपसे मिलवाएं। तो एक डेट अगर आप हमें दे दें जिस दिन हम ये इन्वेस्टर्स को सबको क्वालिफाई करके आपके साथ वन-ऑन-वन मीटिंग्स करवा सकें। और कुछ लोग जो स्टोर विजिट करना चाहें वो स्टोर विजिट कर सकते हैं, जो हेड ऑफिस विजिट करना चाहें हेड ऑफिस विजिट करें, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी स्टॉक रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत प्रिपेयर्ड है एज ए ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बैकएंड बहुत पहले बनाया, तब जाके इन्होंने किया, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज क्या होती है रिटेल में आ जाती है, उनका बैकएंड तैयार नहीं होता है। Because I have worked very closely with them, so I understand that the kind of work they have done in backend, बहुत सारे mature retailer भी नहीं करते। बड़े बड़े retailer as they start फिर जाके डिस्कवर करना शुरू करते हैं। इन्होंने पहले बैकएंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, अब आगे रिटेल के अंदर जा रहे हैं। तो जब आपका बैकएंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सप्लाई चेन, सोर्सिंग, आपकी वेयरहाउसिंग, ये सब तैयार हो जाता है, तो फिर स्टोर रन करना और ऑपरेट करना और सपोर्ट करना इज मच इजियर। So they are a very mature and very respectable company, and they have also great businesses and experience in past. So if you are interested in taking their franchise, please reach out to us in your particular city. Send a WhatsApp on a business hotline number, and we'll set up a call with you. Anything, any date particular, Jitendra ji? आप बोलिए सर, नो प्रॉब्लम, एनी डेट नो प्रॉब्लम। आप बताइए कभी करना है। So can we update तो हम अगर email? we can do on a 2nd of November, 2 तारीख को 2 नवंबर मंडे होगा। आपके लिए लाइट होगा या बिजी डे होगा मंडे, मुझे पता नहीं। Okay, sir. That works for us. So we will do 2nd of November as a date where we are holding Discovery Day. So please, everybody can note. And if you want to apply for their franchise, please reach out to us, send a WhatsApp to us. Our teams would work and then organize a one-on-one discussion with you. Especially if you have your own property which you think can suit it, it can be very good opportunity. Some of the cities I can tell you is no brainer. आप अगर इंदौर में खोलें, आप भोपाल में खोलें, आप लुधियाना में खोलें, आप इन सिटीज के अंदर जो 20 सिटीज हैं, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी। इट कैन सरप्राइज यू व्हाट यू वुड डू इन रांची, भुवनेश्वर, रायपुर, प्लेसेस लाइक दैट। इनमें आपको बहुत मिलेगा। यूपी के जितने भी सिटीज हैं अगर आप उनमें देखें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टोर्स ऑफ वैरायटी रिटेल वाज एक्चुअली इन गुवाहाटी, इन सिलीगुड़ी, प्लेसेस लाइक देयर, बिकॉज वहां पर कंज्यूमर जो है उसके लिए एक सेलिब्रेशन है इन स्टोर्स पे जाना। सो इट्स अ वेरी एंड इट्स वेरी गुड टाइमिंग, बिकॉज अभी ये मार्केट थोड़ी सी ओपन हो गई हैं। इवन दशहरा के अंदर we had seen some retailers giving us feedback that they have got a very good sale. The markets have started coming back. और इंडिया तो ट्रेड इकोनॉमी है, अगर हमारी इकोनॉमी को कुछ बचा सकता है तो दुकानदार है। जब हम लोग खरीदेंगे, दुकानदार बेचेंगे, तो सर्कुलर पैसा जो है मार्केट में वापस आने लगेगा। और वो अब दिखने लग गया है कि दैट सर्कुलर circulation of currency, money is already started happening. So it's a good timing to make a decision. अब प्रॉपर्टी भी सॉफ्ट है, जो प्रॉपर्टी आपको शायद 1 लाख रुपए मिलती थी, आज शायद आपको 75 मिल जाए। So it's a very good timing to really think through and get started on that. So we welcome your interest and please reach out to us and we will be able to take this discussion ahead. Any last remarks, Priyanka ji, starting with you and then Jatinder ji, any last remarks you would like to give to our audience?
Yes, yes. I want to give a remark because हमने जो प्रोडक्ट बनाया है ना, वो अगर मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी ना, शो दी पिक्चर्स, तो वो नहीं समझ में आएगा. अनटिल जो भी इंटरेस्टेड है वो हमारे स्टोर्स में जाके विजिट करें, see the product, they can look over the pricing point, they can feel that touch the product gives, and जो उसका what I say क्वालिटी है, वो जब तक आप प्रोडक्ट नहीं देखेंगे, स्टोर नहीं विजिट करेंगे, तो नहीं समझ में. तो जो भी इंटरेस्टेड फ्रेंचाइजर्स हैं, अगर उनका स्टोर नियर बाय हमारे पास अवेलेबल है, बिफोर हैविंग 1-to-1 कॉल, आई रिक्वेस्ट देम टू गो एंड विजिट टू द स्टोर्स. Great. Thank you so Absolutely. much. That's a हाँ जी, sorry. कौन सी locations हैं? If you want to announce which all cities where franchisees can visit, if you want to even announce, it will be very helpful. People can go and visit the stores in the cities. कौन से cities में आप announce करना चाहते हैं आपके stores available हैं? Yes. CG Road. Ahmedabad CG Road, Raipur City Center Mall Pandri, Pune Gilanis. Where Gilanis? Gilani Towers. Gilani Towers. Shankar Maharaj. Satara. Satara Road. Yes. Nagpur हो गया. Nagpur में. Dharampet, JP Square. Yes, Nagpur में we have a store in Dharampet, JP Square. JP Square. JP Square, Indore C21 Mall. Indore C21 Mall, Gorakhpur. yes, Jagat Mall. Jagat Mall, Gorakhpur. in Jabalpur, Jagat Mall, Gorakhpur. Mumbai. And Mumbai Hub Mall. very good growth in 1 year. With all this going on, you're building a big change. So congratulations to you. This tells about your success story. So it's a very good success, and we can really take this to the next level. Thank you so much, Jitendra ji and Priyanka ji. We'll try and bring our viewers on a call with you on coming Monday. And friends, I will request, because as we close, I'm still seeing all of you asking if your locations and cities are open. I will request whosoever is, even a city like Pune can host more stores. So I have Ajay ji who's wanting to know if we can have a second store. Definitely, I think Pune has a good potential, and we can certainly have a second store operating in the city. And friends, there's 7 odd locations, 3, 4, 5. There are about 8 odd cities that we have shared. If any of these cities where you belong to are closer to where you are, I will request that you go and visit these stores. And we have a week from today, and we'll try and bring all your queries addressed in this week. Please share your location. Agar aapki khud ki property, if you own a property, do share information on the property as well, pictures of the property, and it will help us in maybe making our calls more productive on coming Monday. Thank you so much, Jitendra ji, once again, and Priyanka ji. I'll request Ashna kindly take it over for the closing remarks. Thank you so much, Jitendra ji. Thank you so much, Priyanka, for joining in today, and our congratulations and best wishes for your 6 stores which are coming in 2021. That's the time which you have shared with us. We look forward to have those stores in Mumbai. We would like to thank all our dear participants who have joined us today. We request you to share your feedback, your suggestion and query at our business hotline number, which is 97176-83838. That's the number where you can submit all your feedback. That will help us in improving our process. You can also block your slot for Discovery Day on the same hotline number. Please do visit us and join us at our Facebook page, which is Franchise India Brands Limited. All the videos of previously done webinars submit, they are available there. You can go and watch all the business and franchisee opportunities. We would like to thank our panel member for joining in today. And you can also connect with management team of Franchise India at their respective LinkedIn IDs. That's the information on your screen. And tomorrow at 12 p.m. again, we are inviting you for Fat Loss Clinic franchisee webinar. We are celebrating our 152nd episode of webinar series. Please do join us 12 p.m. for this particular great brand. Founder and the CEO of the company both are coming and presenting their business idea with each one of us. At the same business hotline number, you can get a registration link. We request each one of you to do registration today so that tomorrow sharp 12 p.m. you can join us. Thank you so much once again for joining us today. Have a great day ahead. Stay safe, stay healthy. Thank you so much. Thank you so much. Thanks, Thank you very Priyanka. much. Thanks, Thank you. Jitendra ji. Thank you. Okay. Thank you. Bye, everyone. Bye. Thank you. Bye. you. Bye. Thanks. Thank sir. you.